بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الشعراء۔ قاسم میم۔ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ اس غم میں اپنی جان ہلاک کر لیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان پر ایسی نشانی نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں، اور ان کے پاس رحمن کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ بس انہوں نے جھٹلایا، اب عنقریب انہیں ان باتوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں کتنی پیدا کی ہیں؟ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور یقیناً آپ کا رب ہی سب پر غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب آپ کہ رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان روانی سے نہیں چلتی، پس ہارون کو بھی رسول بنا کر بھیج دے۔ اور ان کا مجھ پر ایک جرم کا الزام بھی ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سب کچھ سن رہے ہیں۔ بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، ہم تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دو۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہیں پالا تھا، اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے درمیان نہیں گزارے؟ پھر تم نے وہ کام بھی کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ موسیٰ نے کہا، میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جب میں بے خبر تھا، پھر میں تم سے ڈر کر وہاں سے نکل گیا، پھر میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں شامل کر دیا، اور یہ جو احسان تم مجھ پر جتاتے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ فرعون نے کہا، اور تمام جہانوں کا رب کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا رب، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا، کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا، وہ تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی رب ہے۔ فرعون نے کہا، یقیناً تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا، وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تم عقل سے کام لو۔ فرعون نے کہا، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں ضرور قید کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح نشانی لے آؤں۔ فرعون نے کہا، اگر تم سچے ہو تو وہ نشانی لے آؤ۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ فوراً ایک نمایاں اژدہا بن گئی، اور انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکتا ہوا سفید تھا۔ فرعون نے اپنے سرداروں سے کہا، یقیناً یہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دو، تاکہ وہ ہر ماہر جادوگر کو تمہارے پاس لے آئیں۔ پھر جادوگر ایک مقررہ دن کے وقت پر جمع کیے گئے، اور لوگوں سے کہا گیا، کیا تم بھی جمع ہوگے، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں ضرور انعام ملے گا؟ اس نے کہا، ہاں، اور یقیناً تم میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے ان سے کہا، جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہا، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو اس نے فوراً ان کی جھوٹی بنائی ہوئی چیزوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اس پر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا، کیا تم میری اجازت سے پہلے ہی اس پر ایمان لے آئے؟ یقیناً اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، وہی تمہارا بڑا ہے، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا، کوئی پرواہ نہیں، ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرما دے گا، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دیے کہ یہ لوگ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے، اور یقیناً انہوں نے ہمیں سخت غصہ دلایا ہے، اور ہم سب پوری طرح تیار ہیں۔ پھر ہم نے انہیں باغوں، چشموں، خزانوں اور عمدہ رہائش گاہوں سے نکال دیا۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے یہ سب بنی اسرائیل کا وارث بنا دیا۔ پھر سورج نکلتے ہی وہ ان کے پیچھے جا پہنچے۔ پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، یقیناً ہم پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو،
चुनांचे वो फट गया और हर हिस्सा एक बड़े पहाड़ की तरह हो गया। और हमने दूसरों को भी वहां करीब कर दिया। और हमने मूसा और उनके साथ के सब लोगों को बचा लिया, फिर दूसरों को गर्क कर दिया। यकीनन इसमें बड़ी निशानी है, मगर उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और यकीनन अब का रब ही सब पर गालिब निहायत रहम करने वाला है। और उन्हें इब्राहीम का वाक़या सुनाई, जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, तुम किसकी इबादत करते हो? उन्होंने कहा, हम बुतों की इबादत करते हैं और उन्हीं की इबादत पर कायम रहेंगे। इब्राहीम ने कहा, क्या जब तुम उन्हें पुकारते हो तो वो तुम्हारी सुनते हैं? तुम्हें कोई नफ़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके पर पाया है। इब्राहीम ने कहा, क्या तुमने गौर किया कि जिनकी तुम इबादत करते रहे हो, तुम भी और तुम्हारे पहले बाप दादा भी, यकीनन वो सब मेरे दुश्मन हैं सिवाय तमाम जहानों के रब के, जिसने मुझे पैदा किया, फिर वही मेरी रहनुमाई करता है और वही मुझे खिलाता और पिलाता है। और जब मैं बीमार होता हूं तो वही मुझे शिफा देता है, और वही मुझे मौत देगा फिर दोबारा जिंदा करेगा। और वही है जिससे मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरी खता मुआफ़ फरमा देगा। ए मेरे रब, मुझे हिकमत अता फरमा और मुझे नेक लोगों में शामिल कर दे, और बाद में आने वालों में मेरे लिए नेक नामी रख, और मुझे नेमतों वाली जन्नत का वारिस बना। और मेरे वालिद को बख्श दे, यकीनन वो गुमराह लोगों में से था। और जिस दिन लोग दोबारा उठाए जाएं, इस दिन मुझे रुस्वा न करना, जिस दिन न माल काम आएगा और ना औलादा, मगर वो शख्स कामयाब होगा जो अल्लाह के हुजूर पाक दिल लेकर आएगा। और जन्नत मुत्तकियों के करीब कर दी जाएगी, और जहन्नम गुमराहों के सामने जाहिर कर दी जाएगी। और उनसे कहा जाएगा, कहाँ हैं वो जिनकी तुम इबादत करते थे अल्लाह के सवा? क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या खुद अपनी मदद कर सकते हैं? फिर वो और गुमराह लोग सब के सब इसमें औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे, और इब्लीस के तमाम लश्कर भी वो इसमें आपस में झगड़ते हुए कहेंगे, अल्लाह की कसम, हम तो खिली गुमराही में थे जब हम तुम्हें तमाम जहानों के रब के बराबर ठहराते थे, और हमें सिर्फ मुजरिमों ने गुमराह किया था। अब न हमारा कोई सिफारिशी है और न कोई मुखलिस दोस्त। काश हमें एक बार फिर दुनिया में वापस जाने का मौका मिल जाता तो हम ईमान वालों में शामिल हो जाते। यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और यकीनन आपका रब ही सब पर गालिब निहायत रहम करने वाला है। कौम नूह ने रसूलों को झुटलाया, जब उनके भाई नूह ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। और मैं इस तबलीग पर तुम से कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे है। बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। उन्होंने कहा, क्या हम अब पर ईमान ले आएं जबकि आपकी पैरवी तो कम दर्जे के लोग कर रहे हैं? नूह ने कहा, मुझे क्या इल्म कि वो पहले क्या करते रहे हैं? उनका हिसाब तो सिर्फ मेरे रब के ज़िम्मे है, काश तुम समझते। और मैं ईमान वालों को अपने पास से निकालने वाला नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक खुला खबरदार करने वाला हूं। उन्होंने कहा, ए नूह, अगर तुम बाज ना आए तो जरूर संसार कर दिए जाओगे। नूह ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया है, बस मेरे और उनके दरमियान फैसला फरमा दे और मुझे और मेरे साथ के ईमान वालों को नजात दे। फिर हमने उन्हें और उनके साथियों को भरी हुई कुश्ती में नजात दी, फिर उसके बाद बाकी लोगों को गर्क कर दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और यकीनन आपका रब ही सब पर गालिब निहायत रहम करने वाला है। कौम आद ने रसूलों को झुटलाया, जब उनके भाई हूद ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। और मैं इस तबलीग पर तुम से कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे है। क्या तुम हर ऊंची जगह पर एक यादगार इमारत बेमकसद बनाते हो और बड़े बड़े महल्लात इस उम्मीद पर तामीर करते हो कि हमेशा जिंदा रहोगे, और जब किसी को पकड़ते हो तो बड़े जालिम बनकर पकड़ते हो? बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और इस ज़ात से डरो जिसने तुम्हें इन नेमतों से नवाजा जिन्हें तुम जानते हो। इसने तुम्हें मवेशियों और औलाद से नवाजा, और बागों और चश्मों से भी। यकीनन मुझे तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का खौफ है। उन्होंने कहा, हमारे लिए बराबर है, तुम नसीहत करो आना करो, ये तो सिर्फ पहले लोगों का तरीका है, और हम हरगिज अजाब दिए जाने वाले नहीं हैं। फिर उन्होंने उन्हें झुटलाया तो हमने उन्हें हलाक कर दिया। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और यकीनन आपका रब ही सब पर गालिब निहायत रहम करने वाला है। कौम सुमविद ने रसूलों को झुटलाया, जब उनके भाई साले ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं, बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। और मैं इस तबलीग पर तुम से कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे है। क्या तुम उन नेमतों में हमेशा अमन के साथ छोड़ दिए जाओगे, बागों, चश्मों, खेतियों और खजूरों में जिनके खुशे नर्म और भरपूर हैं?
और तुम पहाड़ों को तराश कर फखर के साथ घर बनाते हो। बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और हद से गुजरने वालों के हुक्म की पैरवी न करो, जो जमीन में फसाद फैलाते हैं और इस्लाह नहीं करते। उन्होंने कहा, तुम तो सिर्फ इन लोगों में से हो जिन पर जादू कर दिया गया है। तुम तो हमारे जैसे एक इंसान ही हो, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी ले आओ। साले ने कहा, ये ऊँटनी है, इसके लिए पानी पीने का एक दिन है और तुम्हारे लिए मुकर्ररा दिन का पानी है, और इसे कोई तकलीफ न पहुंचाना वरना तुम्हें एक बड़े दिन का अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने इसे ज़बह कर दिया, फिर वो पशेमान हो गए। फिर उन्हें अजाब ने आ पकड़ा। यकीनन इसमें एक बड़ी निशानी है, मगर उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और यकीनन आपका रब ही सब पर गालिब निहायत रहम करने वाला है। कौम लूत ने रसूलों को झुटलाया। जब उनके भाई लूत ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे है। क्या तुम दुनिया वालों में से मर्दों के पास जाते हो, और तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो बीवियां पैदा की हैं उन्हें छोड़ देते हो, बल्कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो? उन्होंने कहा, ए लूत, अगर तुम बाज ना आए तो जरूर निकाल दिए जाओगे। लूत ने कहा, यकीनन मैं तुम्हारे इस अमल से सख्त नफरत करता हूं। ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को उनके अमाल से नजात दे। फिर हमने उन्हें और उनके तमाम घर वालों को नजात दी, सिवाय एक बूढ़ी औरत के जो पीछे रह जाने वालों में थी। फिर हमने बाकी सबको हलाक कर दिया, और हमने उन पर एक बारिश बरसाई, पस डराए जाने वालों पर वो बारिश बहुत बुरी थी। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और यकीनन आपका रब ही सब पर गालिब निहायत रहम करने वाला है। ई के वालों ने रसूलों को झुटलाया। जब शुएब ने उनसे कहा, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? यकीनन मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूं। बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो, और मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो सिर्फ तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे है। नाप पूरा दिया करो और नुकसान पहुंचाने वालों में से ना बनो, और सीधी तराजू से तोला करो, और लोगों को उनकी चीजें कम ना दो, और जमीन में फसाद फैलाते ना फिरो। और इस जात से डरो जिसने तुम्हें और पहली मखलूक को पैदा किया। उन्होंने कहा, तुम तो सिर्फ इन लोगों में से हो जिन पर जादू कर दिया गया है, और तुम तो हमारे जैसे एक इंसान ही हो, और हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। शुएब ने कहा, मेरा रब तुम्हारे अमाल को खूब जानता है। फिर उन्होंने उन्हें झुटलाया तो उन पर साए वाले दिन का अजाब आ गया। यकीनन वो एक बड़े दिन का अजाब था। यकीनन इसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। और यकीनन आपका रब ही सब पर गालिब निहायत रहम करने वाला है। और यकीनन यह कुरान तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल किया गया है। इसे अमानतदार रूह लेकर नाजिल हुई आपके दिल पर, ताका अब खबरदार करने वालों में से हों, साफ अरबी जबान में। और यकीनन इसका जिक्र पहले आसमानी सहीफों में भी मौजूद है। क्या उनके लिए ये निशानी काफ़ी नहीं कि बनी इसराइल के उलमा इसे जानते हैं? और अगर हम इसे किसी गैर अरब शख्स पर नाजिल करते और वो उन्हें पढ़कर सुनाता, तब भी ये इस पर ईमान ना लाते। इसी तरह हमने इस इनकार को मुजरिमों के दिलों में दाखिल कर दिया है। वो इस पर ईमान नहीं लाएंगे यहां तक कि दर्दनाक अजाब को देख लें। फिर वो अचानक उन पर आ जाएगा, जबकि उन्हें खबर भी ना होगी। फिर वो कहेंगे, क्या हमें कुछ मोहलत दी जाएगी? तो क्या ये हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? भला बताइए, अगर हम उन्हें कई साल तक फ़ायदा उठाने दें, फिर वो अजाब आ जाए जिसका उनसे वदा किया जाता था, तो जो कुछ वो फ़ायदा उठाते रहे वो उनके किस काम आएगा? और हमने किसी बस्ती को हलाक नहीं किया मगर ये कि इसके लिए डराने वाले आए, नसीहत के लिए, और हम जुल्म करने वाले नहीं हैं। और इस कुरान को शैतान लेकर नहीं उतरे, ना ये उन के लायक है और ना वो इसकी ताकत रखते हैं। यकीनन वो इसकी खबर सुनने से भी दूर रखे गए हैं। बस अल्लाह के साथ किसी और माबूद को न पुकारो, वरना तुम भी अजाब पाने वालों में शामिल हो जाओगे। और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराई, और जो मोमिन आपकी पैरवी करें उनके लिए अपने बाजू झुका दीजिए। फिर अगर वो आपकी नाफरमानी करें तो कह दीजिए, जो कुछ तुम करते हो मैं इससे बुरी अल्जिम ना हूं। और इस जबरदस्त निहायत रहम करने वाली ज़ात पर भरोसा कीजिए, जो आपको देखता है जब आप खड़े होते हैं, और सजदा करने वालों में आपकी आमद और रफ्त को भी देखता है। यकीनन वही खूब सुनने वाला, खूब जाने वाला है। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान कुन पर उतरते हैं? वो हर बड़े झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं। वो कान लगाकर सुनते हैं और उनमें से अक्सर झूठे होते हैं, और शायरों की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि वो हर वादी में भटकते फिरते हैं, और वो ऐसी बातें कहते हैं जो खुद नहीं करते, सिवाय इन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल किए, अल्लाह को कसरत से याद किया, और जुल्म का निशाना बनने के बाद अपना दिफा किया। और जुल्म करने वाले अनकरीब जान लेंगे कि वो किस अंजाम की तरफ पलट कर जाते हैं।